Hello friends, in today's lecture we will discuss regarding antispinal structure, corundum structures, diamond structures. In previous lecture we discussed fluoride structure, antifluoride structure and spinal structure. See, if you studied spinal structure clearly, then this is antispinal is reverse to spinal structure. General formula is same AB2O4. A is divalent positive ion, B is trivalent positive ion, but both are same. Okay, like that Fe2 plus, Fe3 plus, like that. Vanadium 2 plus, vanadium 3 plus. What was there in spinal? The divalent was magnesium and zinc, Mg2 plus, Zn2 plus, and trivalents are different. Oxygen same 4 oxygen. Now see, in a inverse spinal structure, oxygen form a geometry Cc4, so oxygen 2 minus R4. Number of octahedral voids are 4, number of tetrahedral voids are 8. All this data should be clear in your mind. Now the data is A2 plus. If question is asked, the given structure is like antispinal structure. So you should have all this information, then you can give answer. See, A2 plus occupy 1 by 8 of tetrahedral void. Means total tetrahedral void 8 and 1 by 8 part occupied. So 1 tetrahedral void occupied. B3 plus occupy 1 by 8 of tetrahedral void and 1 by 4th of octahedral void. This one is new thing. So 1 by 4th means 4 multiplied by 1 by 4. Means this directly tells us the B3 plus ion occupy 1 tetrahedral void and 1 octahedral void. B3 plus. So total 1 plus 1, 2. Tetrahedral void 1. So A is equal to 1. Is that clear? Oxygen forms CCP means oxygen 4. So A1 B2 O4. So formula becomes AB2O4. This is a molecular formula. Now what I discuss with you, see here already written O2 minus CCP means 4 atoms are there. A2 plus occupy 1 by 8 tetrahedral void. Okay. 1 by 8 tetrahedral voids means A2 plus occupy 1 tetrahedral void. B3 plus occupy 1 by 8 tetrahedral void means 1 tetrahedral void, and 1 by 4th octahedral void means 1 octahedral void. So total 1 tetrahedral, 1 octahedral. So B3 plus occupy 2 voids. So molecular formula becomes AB2O4. AB2O4. So per 1 oxygen, 1 by 4 A is there and 2 by 4 B is there. 2 by 4B. 2 by 4B means 1 half B. So if formula asked for 1 oxygen, then per oxygen, fourth part of A is there and half part of B is there. Okay. This is also sometimes a student cannot identify the antispinal structure if formula is given like this. So multiply this by 4. So A1, B2 and O4. Multiply here by 4, here by 4 and here 1 multiplied by 4. So formula becomes AB2O4. So this is a non-stoichiometric formula. Okay. That is also sometimes given. Now let us find out the ratio. How many tetrahedral voids occupied? 1 by A and 1 by B, total 2. How many numbers of octahedral void occupied? Only 1, and that is by B. So ratio of occupied tetrahedral and octahedral void is 2 is to 1, but in spinal structure it was 1 is to 2. Okay, so this is reverse to. Okay, this one is a reverse to. Everything is reverse to spinal structure, remember. So how many octahedral voids are unoccupied? So total 8 are there.
2 occupied, 1 by A, 1 by B, so total 6 remain unoccupied. How many octahedral voids remain unoccupied? So 1 occupied by B, total were 4, so 3 remains unoccupied. Now the ratio of unoccupied tetrahedral voids to octahedral void is 6 divided by 3, 2 is to 1. Okay, so that ratio is also here. So see here, the occupied is reverse with respect to spinal, so it is also called inverse spinal. And the best example sometimes directly asks which of the following form anti-spinal structure. So Fe3O 4. So this Fe3, among them one Fe is Fe2 plus, another 2 Fe exists as a Fe3 plus. This is a mixed oxide, all mixed oxide like this, and it is a FeO into Fe3O, ferroferric acid. This Fe is considered A, this 2 Fe considered B, and total 4 oxygens are there. Okay. Now, very most important structure, let us discuss the corundum structure. corundum structure का जनरल फॉर्मूला है A2B3, sorry A2O3. The A is the cation having 3 valency, means 3 positive charge, and oxygen is having 2 negative charge. Generally well known structure is aluminium oxide, and it is a gemstone, either it is a ruby red or sapphire blue. Very costly stones are there. Okay, so that is called corundum. A2 means aluminium 2, A2O3. So that is best example is aluminium oxide. So what is the solid structure, crystal structure of A3 plus? See, A3 plus occupy 2 by 3 octahedral void, and oxygen form HCP, and HCP you know oxygen 6, aluminium form occupy 2 by 3 octahedral void, means how many octahedral voids? 6 octahedral voids are there. How can you say 6 octahedral voids? Number of spheres equal to number of octahedral void, number of spheres double tetrahedral voids. So 6 octahedral voids, and out of 6 how many occupy? 2 by 3. So 6 multiplied by 2 by 3. So total 4 occupied by 4 void, octahedral void occupied by A3 plus. So formula becomes A3 plus 4 occupied and B6. If 2 is common, then the formula is A2B3. 2 is common. Is it clear? A2B3. Or in place of B here oxygen is there, so it is A2O3. Oxygen 4 means A4. A4, and oxygen 6 means O6. So 2 common, A2O3. And in example, in place of A, aluminium is there, and that is gemstone, aluminium oxide. So that I explained. O2 minus form 6 in hexagonal, 12 corners, 1 corner participation 1 by 6, 2 faces up and down, 1/2 participation, and 3 center. Total 6 spheres are there. So octahedral void 6, tetrahedral void 12. But no tetrahedral occupied, A3 plus occupied 2 by 3 octahedral voids, so total 4, and oxygen 6. So A4A6 molecular formula will be A2O3. Now this table only 4 you have to use whenever the question asked. Is it clear? See, this type of total information you can't get from any book. So I have collected from different books, and this is only for based on your memory power. Sometimes direct question, especially in NEET, asked which of the following contain HCP, CCP, FCC or BCC. So at that time your logic, your knowledge regarding solid state never working. This is the memory based question. So see, I have listed all the metals of periodic table which have hexagonal closest peg. Coordination number 12, you know very well. Beryllium, magnesium, cadmium, zinc, titanium, molybdenum, vanadium and cobalt. Okay, these all are. If you remember 2 or 3 easy, then another one आप दो याद रख लो, तो दोनों में से अगर ऑप्शन नहीं है तो वो तीसरा आंसर होगा, ऐसा आप
कर सकते हो। CCP और FCC आपको पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, कॉपर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, यहाँ पे सब नोबल मेटल है। देखिए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ऑल नोबल मेटल्स आर देयर, ठीक है। और ये जो महंगी मेटल है कॉपर एंड निकल, जो कैटालिस्ट में यूज होती है वो भी। ग्रुप नंबर 2 में से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ग्रुप नंबर 13 में से एल्यूमिनियम। एंड फ्रॉम डी ब्लॉक अनदर लेड इज देयर, ओके। सो now BCC is very easy to remember, all first group element up to cesium, second group element barium, and then D block element chromium ion, that is from 21 to 13, and from P block iridium. Is it clear? Not P block, is also D block. Is it clear? And now primitive cubic, and it is only one, and that is polonium. Okay, so no any logic is there, no any proof is there that derive this and everything. Only memory based question is asked, generally not asked in JEE, but I have seen in many paper directly, which of the following metal, but it is helpful in Gujkat. Some metals are there in our textbook also for CCP and HCP. See, in HCP zinc is there in our book, zinc is there in our book. With zinc another metal cadmium is there, I think. Here silver and gold is there in our book, okay. Copper is there, ठीक है। और बीसीसी में आपको पता है कि सोडियम इज बीसीसी, तो ग्रुप नंबर 1 कंप्लीटली बीसीसी। देन ग्रुप नंबर 2 बेरियम, ग्रुप नंबर डी ब्लॉक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज chromium and iron, and another second transition series iridium, and this one is polonium, is the only element of P block. And here is 2 are there, not lead is not there, but aluminium is here in FCC. Is it clear? All this metallic, no negative ion present here. All this metal contain this type of geometry, remember, HCP, CCP. Okay, here cation anion concept is not there. Now last one is the diamond structure, and very very most important in JEE ask question, in NEET also one or two time in recently asked question. So here also no negative ion, diamond structure. Diamond form FCC, means total 4 atoms, and all other carbon occupy alternate tetrahedral void. So how many tetrahedral void? 8. And alternate means half used, so divided by 2. So 4 carbon occupy tetrahedral void. So 4 carbon atom form FCC, another 4 carbon occupy alternate tetrahedral void. So write down here T, not O, tetrahedral void, okay. 4 tetrahedral void, so total 8 carbon are there. 4 octahedral voids, not 4 tetrahedral void. Why 4? Because alternate means total tetrahedral void 8, so alternate means half occupied, so 4 occupied. Is it clear? And age length directly without any FCC, you know very well what will be the age length, 8R upon root 3. Now packing efficiency. So packing efficiency means volume of unit cell, volume of sphere divided by volume of unit cell multiplied by 100. So see here, 8 spheres are there. 8 spheres are there. How many? 8. 4 in alternate tetrahedral void and 4 from FCC. 8 sphere, 1 sphere volume is 4 by 3 pi r cube, and age length directly I have given you. And now volume of unit cell is nothing but a cube. So see here 8r upon root 3 cube multiplied by 100. If you simplify this, I have given you the simplification. So the packing efficiency is 34%. So packing efficiency is 34%. So one idea, one logic came into mind that 34%, then why diamond is strongest, hardest material, okay, even if packing efficiency is very very less. See here,
diamond is hard. This is the packing efficiency of unit cell. But we know very well diamond is strong because it has a 3D network structure. ठीक है. अगर वीक आदमी कॉलोनी मतलब कि ग्रुप में रहता है तो वो स्ट्रोंग हो जाता है. एक्स फॉर एग्जाम्पल इसराइल. ठीक है. तो ये 3D नेटवर्क बहुत ही गहरा स्ट्रक्चर ऐसे नेटवर्क होता है 3D में, तो इसी वजह से ये स्ट्रोंग है. इवन इफ यूनिट सेल हैज अ 34% पैकिंग एफिशिएंसी. तो ये जो कंफ्यूजन था वो आप अपने दिमाग में थोड़ा बिठा लीजिएगा. अब लास्ट एंड competitively important, that one is the Bragg's equation. So derivation is not there of in our syllabus, and derivation is not that much important. No competitive question asked from derivation because derivation is very easy. Sometimes direct question asks which of the following is a Bragg equation. Bragg equation is the n lambda 2d sin theta. n is the integer 1 2 3 4. वो जो है सॉलिड के लेयर होते हैं, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर, जैसे हम एबीसी लेयर करते हैं ना, उसी तरह. ठीक है. तो ये n है, इंटीजर है. कितने लेयर में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 लेयर तक 3 लेयर तक. लेमड़ा जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो ये सॉलिड के ऊपर हम एनोड ट्यूब से वेवलेंथ अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो कितनी वेवलेंथ अप्लाई करते हैं, दैट इज इन नैनोमीटर. जो सॉलिड हमने कंसीडर किया है उसका ये पहला लेयर, इसका दूसरा लेयर, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर, ए बी पैटर्न, ए पैटर्न, एबीसी पैटर्न लेयर आते हैं ना. तो ये दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस, सपोज दैट वन इज द डी एंड दैट इज ऑल्सो इन नैनोमीटर. डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स. ओके. और आपको कॉम्पिटिटिव में ये साइन थीटा, जैसे कि हम कुछ वेवलेंथ इस लेयर के ऊपर पड़ती है सॉलिड के, तो रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलती है ऐसे, तो ये एंगल हमको मेजर करना होता है थीटा. ठीक है. उससे ब्रैग ने क्या ऑब्जर्व किया कि हम एक्सरे डिफ्रैक्शन और इसका हम फोटोग्राफी करते हैं तो हमें ऐसी सिस्टेमेटिक डिज़ाइन का ग्राफ मिलता है. तो वही तो मैंने आपको बोला कि सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट का एक हमें फोटोग्राफ मिलता है, एंड दैट सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटाइस. तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि सॉलिड्स, क्रिस्टल सॉलिड्स हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट. ओके. तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है ऐसा एक एक्सपेरिमेंट का. अगर न्यूमेरिकल आए तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये डेटा फाइंड करके n लेमडा 2d साइन थीटा में रख देना है. तो एक ही एग्जाम्पल आपको सोल्व करके रख देना है, बाकी सब सेम टाइप के आएंगे. सी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n, एक लेमडा, एक 2d और एक साइन थीटा. तो थीटा कभी आपको पूछते नहीं है क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स थोड़ा बढ़ जाता है, डी से थीटा निकालना. और अगर 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ऐसी वेल नोन वैल्यू आती है जो आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो. ठीक है. लेकिन बायोलॉजी वाले वो यूज़ नहीं करते. तो आपने 10th में जो वैल्यूज़ पढ़ी है 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, ये सब डिग्री वाले अगर है तो आपको थीटा पूछा जाएगा क्योंकि आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है. ट्रिगोनोमेट्री 10th स्टैंडर्ड में आपने वो टेबल प्रिपेयर किया. तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मतलब कि पहला लेयर n इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखा होगा. फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, मतलब कि यहाँ जितना ऑर्डर लिखा या तो डायरेक्ट आपको दिया उस हिसाब से n ले लेना है. एक क्रिस्टल लिया है हमने, उसके ऊपर हमने एक्सरे रेज एक्सपेरिमेंट, एक्सरे इंसिडेंट किए हैं. कहाँ से, तो कि एनोड ट्यूब, कॉपर की एनोड ट्यूब होती है वो, उसका जो वेवलेंथ है वो 0.154 नैनोमीटर. सब नैनोमीटर में रखना है, ब्रैग ने सब नैनोमीटर में ही किया है. तो जो उसका एंगल आता है वो 16.3 डिग्री आता है. तो आपको थीटा मिल गया, आपको लेमडा मिल गया, आपको एन मिल गया.
तो क्या पूछा होगा वो भी आपको पता है कि दो लेयर, उस क्रिस्टल के दो लेयर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए ड्यूरिंग द डिफ्रैक्शन। जो हमें डिज़ाइन मिल रही है दो लेयर के ऐसे मिल रहे ना, एक ऐसे राउंड मिलेगा, अंदर एक राउंड मिलेगा, ऐसे स्पेसिफिक डिज़ाइन जो मिल रही है उसके दो लेयर का क्या डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस आप ढूंढ के बताइए। तो डेटा नोट कर लो आप, आपको पता है n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, लेमडा 0.154, साइन थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई होगी, आपको ढूंढनी नहीं है, 0.7274 नैनोमीटर। देन फाइंड आउट डी, ठीक है। तो उसी इक्वेशन में देखिए मैंने वैल्यू रख दी है, एन लेमडा 2d साइन थीटा, डी हमें पूछा है तो एन लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, एन इज 1, लेमडा की वैल्यू 2, साइन थीटा की वैल्यू 0.281 0.274 है, मैंने गलत रख दिया, आप 0.274 रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर में बहुत फर्क नहीं आएगा क्योंकि मैंने दिया आपको 274, यहाँ मैंने गलती से रख दिया 284, तो ज़्यादा आंसर में फ़र्क, ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर परफेक्ट मिल जाएगा। तो ये आंसर आएगा 0.274 नैनोमीटर। ओके, मुझे तो सिर्फ कैलकुलेशन ही समझानी है। अब काफ़ी बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर ये एक कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि हमें जो है वो वॉइड का लोकेशन पता चले, ट्रिक फॉर द वॉइड लोकेशन इन एफसीसी। मेजॉरिटी एफसीसी में अगर आपको पता चल जाए तो आप इजीली वॉइड लोकेशन अगर आपको नहीं पता चलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको वॉइड कैलकुलेशन करना आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन भी इंक्लूड किए। तो एफसीसी में दो तरह के वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, किसी भी सेल में आप बता सकते हो। तो मैं लोकेशन के बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूं जो मैंने टेक्स्ट बुक में, हमारा जो एकेडमिक डिस्कशन में मैंने नहीं की है बहुत। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो एक बॉडी सेंटर में बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सब एज सेंटर से बनता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये एक बॉडी सेंटर, एज कितनी है, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड की, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज, एक एज का पार्टिसिपेशन होगा 1/4, ठीक है। कॉर्नर का 1/8, एज का 1/4, सेंटर का 1/2। तो यहाँ पे एज का याद रखिएगा, एक एज 4 सेल के बीच में शेयर होगी, तो 1/4। तो देखिए यहाँ आपको पता है, पहले डेटा तो आपको पता है, एफसीसी में स्फीयर कितने होते हैं, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8, ठीक है। तो मेजोरिटी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विदाउट नोइंग द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन थोड़ा मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर का एक, बॉडी सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता ही है यहाँ पे, ठीक है। एज सेंटर में टोटल 12 एजेस, एक एज का पार्टिसिपेशन 1/4, तो टोटल 3, तो 3 + 1 हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4। देखिए ये एज सेंटर, ये वाला एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा, यहाँ से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, तो टोटल 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप 3D में नहीं देख पाओगे, लेकिन एज सेंटर और बॉडी सेंटर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो ये 3 और ये यहाँ पे बॉडी सेंटर का 1, तो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए। और आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो सेल के अंदर ही बनता है, वो किसी फेस के ऊपर कभी नहीं आता, तो नियर टू कॉर्नर सब टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो ये रेड कलर का आप देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और 4, यहाँ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे 4 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 8, ठीक है। ये लोकेशन के उनके 4 कॉर्नर के पास बता दीजिए, आपको पता चले या ना चले। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका टोटल 4 आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 आएगा। तो टोटल स्फीयर 4 है, तो नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड नंबर ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय 2
इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वर्ड, वो हमारा एकेडमिक फॉर्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन 3-4 मैंने बनाए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। कौन से टाइप का वर्ड होगा जो अलोंग विथ एज होगा? अलोंग विथ एज कौन से टाइप का वर्ड होगा? तो आप देखिए यहाँ पे अलोंग विथ एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा तो आंसर है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, सीधा क्वेश्चन। ये एकेडमिक में नहीं हम डिस्कशन करते हैं। अब देखिए फेस के एंड में कौन होगा? फेस के एंड में भी ऑक्टाहाइड्रल वर्ड ही होंगे। देखिए यहाँ पे फेस एंड, ये देखिए ये फेस एंड है, ये ऊपर वाला फेस एंड। तो 1 2 3 और 4 स्फीयर, तो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड आएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1। अब आप बताएं, आप बोलेंगे कि ये रेड कलर के जो है वो भी तो फेस में नहीं, ये फेस में नहीं है, नॉट इन फेस, ये फेस के अंदर है, ये सेल के अंदर। टेट्राहाइड्रल वर्ड जो है वो फेस को टच नहीं करते, मतलब कि अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाया है। देखिए यहाँ पे इसमें एक कॉर्नर का एटम लगता है और 3 अंदर, एक ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। तो वॉइड जो है वो पूरा अंदर चला जाता है। ठीक है, सब वॉइड 1 2 3 4 सब वॉइड अंदर होते हैं, फेस में एक भी वॉइड नहीं आता है। और यहाँ क्या होता है कि ये ऑक्टाहेड्रल, इसका ऑक्टाहेड्रल जो है वो ऐसे आगे ऊपर चला जाता है, तो ये फेस को इंक्लूड करता है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल फेस को इंक्लूड करता नहीं है। ओके, तो टाइप ऑफ वॉइड ऑन फेस, टाइप ऑफ वॉइड ऑन फेस, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, 4 जो है 4 एटम, तो 4 एटम से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो ये 4 मैंने लिखा है वो 4 एटम है, लेकिन टाइप ऑफ वॉइड वहाँ ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, क्योंकि वहाँ 4 एटम, यहाँ 1 2 3 4 एज सेंटर वाले है ना, ये यहाँ पे लगे, ये इसका मतलब 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं है, इसमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन, टाइप ऑफ वॉइड ऑन फेस डायगोनल। चलिए फेस डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये फेस डायगोनल, आप रेड को कंसीडर मत करिएगा, रेड सेल के अंदर है। देखिए फेस डायगोनल में कुछ इंक्लूड नहीं हो रहा है, कोई रेड पार्ट भी नहीं, कोई ब्लैक डॉट भी नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई वॉइड नहीं होगा। ये देखिए फेस डायगोनल, कुछ इंक्लूड नहीं होगा, फेस डायगोनल कुछ इंक्लूड नहीं होगा, फेस डायगोनल कुछ इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो फेस के जो एटम है वो वहाँ से फेस डायगोनल से कोई वॉइड मिलता नहीं है। टाइप ऑफ वॉइड ऑन फेस डायगोनल, नो वॉइड। ऑक्टाहेड्रल भी नहीं होता फेस डायगोनल में, टेट्राहेड्रल भी नहीं होता। अब बॉडी डायगोनल की बात आती है, बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है। चलिए देखते हैं, बॉडी डायगोनल में ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए बॉडी डायगोनल में इस कॉर्नर से आप जाएंगे, इस कॉर्नर तक जाएंगे। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल है। देखिए तो इस कॉर्नर वाला एक टेट्राहेड्रल वॉइड, सामने वाले कॉर्नर का एक टेट्राहेड्रल वॉइड, और बीच का जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एंड एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन पेपर में, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो मैंने थोड़ा इसको आपको एक ट्रिक दे दी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको ये बोर्ड में भी काम आ सकती है। अगर गुजकेट का पेपर कुछ लॉजिकल निकला कि बच्चे जानते कि नहीं, तो आप मना नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना मुझे डिस्कशन करना था, इसके साथ में कुछ नीट वालों के लिए, फॉर नीट I am sending you the last 30 years questions regarding solid state, and for JEE student के लिए, तो उनके लिए last 10 years questions I am sending with this video. So solve it whenever you are free, 2 3 5 questions, 10 questions, so it will be very very helpful to you. Okay, thank you friends, thank you very much. Student, for your interest, see on your screen the great scientist
विलियम हेनरी ब्रेग और उनके भाई ने, ये मैंने बोला वो कैथोड रे ट्यूब है, किसी क्रिस्टल को यहाँ पे रख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सी पैटर्न है। इसी इसी की स्टडी से ही हमें जो ये अरेंजमेंट है, मतलब कि हम लोग करते हैं बीसीसी, एफसीसी, सीसीपी, एफसीसी और सीसीपी सेम होता है, एंड एचसीपी, ठीक है। तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन से स्टडी किया और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेयर से एक्सरे पास करवाए और उनको जो ये सिस्टमेटिक ऐसी पैटर्न मिली, ये पहला राउंड और ये दूसरा सर्कल का राउंड, और हर एक में स्पेसिफिक डिज़ाइन हम कर सकते थे, ऐसा उन्होंने किया। और फिर इस कैलकुलेशन में उन्होंने जो इक्वेशन दिया एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। ये क्रिस्टलोग्राफी हमारी जो है, क्रिस्टलोग्राफी में जो हम आजकल स्टडी करते हैं, ये सब इनकी देन, ठीक है। अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटोग्राफ है वो उसी एक्सरे से निकाला गया ये सिस्टमेटिक पैटर्न है। हालांकि फ़ोटो इतना क्लियर नहीं है, उसको डिजिटल करके अभी इसको थोड़ा क्लियर करके वो देखा जाता है। ये सीधा फोटोग्राफ से जो यहाँ पे आपको, इसमें ऐसा कोई डिज़ाइन विज़ाइन दिखने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा जो फोटोग्राफ आता है, उस फोटोग्राफ का अगर हम इसको एनालाइज करके, जैसे बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रा एनालाइज किया था, वो भी पहले कॉम्प्लिकेटेड ही दिखा था, तो इसमें एक सिस्टमेटिक पैटर्न हमें दिखाई देती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे नाम लिखा है मैक्स वॉन लू, उसका ब्रेक के साथ मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि ये जो सब ग्राफ है ये इन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी किए। और फाइनली एक ही इक्वेशन, अच्छा है ना, हमको एक ही इक्वेशन दिया इन लोगों ने, एंड दैट इज एन लेमडा 2d साइन थीटा, ओके। और एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि पिछली बार मैंने ZNS जिंक ब्लेंडी का स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया था, तो फिर से एक बार जिंक ब्लेंडी का ये स्ट्रक्चर आप पोज करके, ठीक है, मैंने जो जो डेटा दिए हैं उस डेटा को इसके साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एंड एवरीथिंग यू कैन चेक, ठीक है। ये सल्फर जो है कहाँ पे है, Zn2+। यहाँ पे एक बात ये है कि Zn2+ जो है वो सेल की ज्योमेट्री वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी आप देख लेना, जो फर्स्ट लेक्चर में था ZNS, मैंने कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट, उसके बाद लिया था वुडजाइट, जिंक ब्लेंडी एंड CSCl, ओके, जिसके साथ आपको कंपेयर। और स्ट्रक्चर जो है वो नाम से बोले जाते हैं, जैसे कि फ्लोराइट, एंटी फ्लोराइट, स्पाइनल, एंटी स्पाइनल मीन्स इनवर्स स्पाइनल, कोरंडम एंड लास्ट वन इज डायमंड, ओके। और ये देखिए, ये उनके छोटे भाई हैं विलियम लॉरेंस ब्रेग, दोनों ने साथ मिलके एक्सपेरिमेंट किए। और ये जो मैं बता रहा था 2 लेयर, पहला लेयर दूसरा लेयर, NaCl के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और ये जो थीटा, ये थीटा आपको ये डायग्राम नहीं करना है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि जो मैंने ब्रेग इक्वेशन लिखा है, उस ब्रेग इक्वेशन की ये फिगर है, यहाँ से ये ब्रेग इक्वेशन डिराइव की गई ये NaCl में से। और ये जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर, ये पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड लेयर, और ऐसे करके यहाँ ये थीटा मेज़र करते हैं, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ कि हम लोग जो रेडीमेड पढ़ रहे हैं HCP CCP वो ऐसे ही नहीं मिला है। तो ये विलियम लॉरेंस ब्रेग, जो उनके भाई, छोटे भाई, वो दोनों ने मिलके इसके ऊपर काम किया। तो ये जो डायग्राम जो मैं बोल रहा था ना, डिस्टेंस बिटवीन, और ये थीटा, फिर ये जो यहाँ से ये वेव्स आ रहे हैं इसका लेमडा, ठीक है, ये थीटा साइन थीटा, वो सब यहाँ से डिसाइड करना होता है। ZNS के 2 स्ट्रक्चर है, ये आपने देख लिया, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिएगा। ये जिंक ब्लेंडी है, ये वुडजाइट, ठीक है, दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट डिफरेंट है। ये जिंक ब्लेंडी है, ये वुडजाइट।
मैंने जो डेटा लिखा है उसके साथ ये कंपेयर करिएगा, सब कुछ आपका मैच आ जाएगा। ये जिंक ब्लेंडी, ये वुडसाइड। ओके, तो यहाँ पे हम ये लेक्चर ओवर कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।